آج میرا سبجیکٹ کراچی ہے اور آج میں اس چونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کارکنوں سے مخاطب ہوں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل ہیویلی پاپولیٹڈ ہے، ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو ہم عرف عام میں اردو بولنے والا مہاجر کہتے ہیں، 80 سے 90% تعداد جو ہے وہ مہاجروں کی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ ہمارے کارکنان بھی جو ہمارے ٹاؤنز ہیں وہ زیادہ تر اردو بولنے والے سارے 90% ٹاؤنز ہیں، تو اس لیے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آج اسپیسیفکلی میں مہاجروں سے مخاطب ہوں۔ اے مہاجروں، آج یہ جو ہمارے شہر کے نوجوان ہیں جس کی عمر آج 30 سال کی ہے، فرض کرو 30 سال کی عمر کا کوئی نوجوان ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ 19 جون 1992 کو عامر خان نے کیا کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ 19 جون 1992 کے دن عامر خان ٹرکوں پہ بیٹھ کر آ کر اس نے مہاجروں پر کیا شب خون مارا۔ کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ 19 جون 1992 کے دن آج 30 سال عمر پانے والا نوجوان یا تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا ماں کے پیٹ میں تھا۔ وہ پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ آج کا جو 30 سال کی عمر کا نوجوان ہے وہ اس وقت تھا نہیں، اور آج جب وہ پیدا ہو کر 30 سال کا ہو گیا ہے تو آج اس شہر میں جھوٹ بولنے والوں کا انبار ہے، اور اس نوجوان کے پاس سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اور آج کے نوجوان کے پاس موبائل فون کی صورت میں ہتھیار ہے، اس کو جو انفارمیشن مل رہی ہے صحیح اور غلط کا توازن کیے بغیر وہ آگے انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور آگے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اے مہاجروں، ابھی میں 30 سال والے عمر کے نوجوان کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سال والا جو نوجوان ہے جس کی عمر آج 20 سال ہے، وہ اس کو نہیں پتا، اس کو ہوش نہیں ہے کہ وہ عامر خان جس نے 19 جون 1992 سے لے کر 2011 تک 20 سالوں میں 10,000 مہاجروں کو قتل کرنے کے بعد وہ آ کر الطاف حسین سے معافی مانگ کر دوبارہ MQM میں شامل ہو گیا۔ آج 20 سال کی عمر والے نوجوان کو اس کا ہوش نہیں ہے، کیونکہ جب عامر خان معافی مانگ کر 20,000 نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد MQM میں واپس آ رہا تھا 2011 میں، تو اس کی عمر 10 سال کی تھی، صرف 10 سال کا بچہ تھا وہ۔ ایک 10 سال کے بچے کو یہ ہوش نہیں ہے، یہ ہوش نہیں ہوتا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ آج کا جو نوجوان 20 سال کا ہے اس کو عامر خان کے 2011 کی معافی کا نہیں پتا۔ تو میرے نوجوانوں، مہاجروں، آج میں تمہارے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ شہر پیپلز پارٹی کے قبضے میں چلا گیا۔ کیسے قبضے میں چلا گیا پیپلز پارٹی کے؟ اس شہر سے 35 سالوں سے مینڈیٹ لینے والے لوگ جن کے پاس گورنر تھا، جن کے پاس اس شہر سے 17 MNAs تھے، جن کے پاس کراچی حیدرآباد کے 51 MPs تھے، جن کے پاس وزیر تھے، سینیٹر تھے، میئر تھے، کونسلر تھے، سیکٹر انچارجز بیٹھے تھے، اتنی طاقت تھی کہ آپ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا، آپ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا۔ ان کے رہتے ہوئے جن کو لوگوں نے اپنے ووٹوں سے اپنے بچوں کے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے حقوق کی نگرانی پر چوکیدار بنا رکھا تھا، ان کے ہوتے ہوئے یہ شہر پیپلز پارٹی کے قبضے میں کیسے گیا؟ آج تمہارا میئر کھڑے ہو کر کہتا ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار گئے کب؟ جب اختیار جا رہے تھے تو تم چاند پہ گئے ہوئے تھے یا بھنگ پی کر سو رہے تھے بدکاروں۔ یہ اختیار گئے کیسے؟ اور تم تو ہڑتالیں کرنے والی پارٹی مشہور تھے، تم تو شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور تھے، تو جب شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈل رہا تھا تو تم نے شہر بند کیوں نہیں کرایا؟ ایک ہڑتال بتاؤ۔ اے مہاجروں، یہ شہر بند ہوا ہے، ہم نے بند کیا کہ الطاف حسین صاحب سے کسی اینکر نے تیز آواز میں بات کر لی، شہر بند۔ کسی چینل نے خبر نہیں چلائی، شہر بند۔ الطاف حسین کا شناختی کارڈ لندن میں نہیں مل رہا، شہر بند۔ جب اس شہر کی نسلوں کا سودا ہو رہا تھا، اس شہر کو پیپلز پارٹی مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت اس شہر پہ قبضہ کر رہی تھی، تو تم نے اس شہر کو بند کیوں نہیں کرایا؟ تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ آؤ، آج میں چند حقائق پر سے پردہ اٹھاتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر کسی کا سوال رہ جاتا ہے مصطفیٰ کمال تو کھلے میدان میں بلاؤ اور عدالت لگاؤ اور مصطفیٰ کمال آئے گا اور جواب دے گا۔ لیکن میں آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد کسی کا کوئی سوال رہ نہیں جائے گا، اگر وہ منافق نہیں ہے تو۔ دشمن بھی ہے تو بھی کنونس ہو کر جائے گا۔ منافقوں کا علاج
इलाज नहीं है। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं पहले हिस्से में कि शहर कैसे लूटा। आज चूंकि ये पब्लिक, ये आम लोगों का इजलास नहीं है, कारकुनान और जिम्मेदारान है। तो ये देखो, ये 2008 की तस्वीर है, ये 90 की, ये 2008 की तस्वीर है 90 की। आज जो नौजवान 20 साल का है, उसकी उम्र उस वक्त 10 से 12 साल की होगी। उसको याद नहीं है कि जरदारी साहब 90 आए थे, ये फारूक सत्तार हैं डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम के, और दोनों हाथों में हाथ डालकर 2008 में साथ जीने मरने की कसम खा रहे हैं। ये है मुहाजिरों की लुटने की इब्तदा। ये दिन है 2008, किस लिए? अपनी वजारतों के लिए, अपनी गवर्नरशिप के लिए। ये 90 की तस्वीर है। ये हाथों में हाथ डालकर साथ जीने मरने की कसमें खाई जा रही हैं। ये लंदन में उसके बाद जरदारी साहब जाते हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जिस पीपल्स पार्टी ने आज इस शहर का पानी बंद, इस शहर का कचरा उठना बंद, इस शहर में रोजगार मिलना बंद, इस शहर में सड़कें बनना बंद, उसकी इब्तिदा यहां से फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। ये 2008-9 की तस्वीर है। उसके बाद आ जाइए 2012-13 में। ये मैंने नहीं बनाई तस्वीर, ये पाकिस्तान के सारे अखबारों में छपी हुई तस्वीर है। ये जंग की तस्वीर है। नीचे कैप्शन लगा हुआ है कि कराची गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर रहे हैं और वजीर आला और फारूक सत्तार भी मौजूद हैं। अपने हाथों से लिखकर ये शहर हवाले किया है। तस्वीर झूठ नहीं बोल रही। बदबख्तों, अपनी रिश्वतों के लिए, अपने हराम खाने के लिए, अपनी प्रोटोकॉल, अपनी पावर, अपनी एमपी एमएलए वजारतों, अपनी गवर्नरशिप रखने के लिए 2012-13 की तस्वीर है। ये 2012-13 में अपने हाथों से लिखकर ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस साइन कर रहा है तुम्हारा गवर्नर और कन्वीनर बैठ के, और पीपल्स पार्टी के वजीर आला को थाल में सजाकर ये शहर हवाले कर रहा है। आज तुम कहते हो हमारे पास इख्तियार नहीं है, और तुम जिंदा सलामत हो, मुहाजिरों के बीच में घूमते फिरते हो। क्योंकि मेरे शहर का नौजवान जो आज 20 से 30 साल जिसकी उम्र है, उसको नहीं पता, वो उस वक्त मौजूद नहीं था तो बहुत छोटा था। लेकिन आज के बाद इस शहर के नौजवानों को माफी नहीं है। इस शहर के नौजवानों के पास एक्सक्यूज नहीं है कि उनको पता नहीं कि 2008 में क्या हुआ, कि उनको पता नहीं कि 1992 में क्या हुआ, उनको पता नहीं कि 2012 में क्या हुआ। ये वो तस्वीर है जिससे शहर को हवाले किया जा रहा है। और यही वो टाइम है जब मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, मैं सेनेटर था, मेरे आगे पीछे 3-3 मोबाइलें चलती थी, मेरा कोई दुश्मन नहीं था। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर था, लेकिन हम पार्टी के लीडर नहीं थे, पार्टी के कारकुन थे। हम समझाने के बावजूद भी इन चीजों को नहीं रोक सके, तो हमने अपने हिस्से की ईंट इस दीवार से निकाल ली कि हम गुनहगार नहीं होना चाहते। और 2013 में मैं और अनीस कायम खानी ये पार्टी छोड़कर चले गए। हम चले गए 2013 में। ये वो टाइम है, हम छोड़कर चले गए। हम इस मुल्क से छोड़कर, हम अपनी सेनेटरशिप छोड़कर, अपनी पोजीशनों को छोड़कर चले गए। हमने अपने हिस्से की ईंट निकाली। हम 2016 में जब आए हैं तो उससे पहले क्या हो रहा था इस शहर में? अल्ताफ हुसैन साहब क्या कर रहे थे, ये एमक्यूएम क्या कर रही थी, और उनके इस अमल के बदले, उस तमाम हरकतों के बाद इस शहर के मुहाजिरों के साथ क्या हो रहा था, आओ तुम्हें जरा एक झलक दिखाएं। सुअर की बच्चियों, कुत्ते की बच्चियों और बच्चों, तुम सुअर नस्ल, कुत्ते की नस्ल, कि तुम्हारा जो बाप तुम्हारी माँ के हक निकाह में था, उसके नुत्फे से नहीं, बल्कि अपनी माँ के यार के नुत्फे से तुम पैदा हुए हो। सुअर के बच्चों, हराम सादों और हरामी के कुत्ते, क्योंकि दलाल दलाल होता है, पिप होता है, उसका काम सप्लाई करना होता है। और तुमकी टीवी वालों, अखबार वालों, ये बदमाशी, हरामीपन, रंडीबाजी छोड़ दो। ये जलील कैसे होंगे? तवाइफ को तवाइफ कहो तो उसको क्या बुरा लगेगा, और भड़वे को भड़वा कहो तो उसको क्या बुरा लगेगा। अगर मैं तेरी बेटी या तेरे बाप को उठा लूं तो, तेरे बाप तो खैर मर गया, तेरी बेटी के बेटों को उठा लूं तो, नवेद मुख्तार तेरे बेटे बेटियों डीजी करा दी, तेरे बेटे बेटियों या उनके बेटे बेटियों को उठा लूं तो। रॉ से मेरा इतना ताल्लुक है और वो रहेगा हमेशा रॉ से ताल्लुक। And I had never been willingly
Indian cooperated with India. پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا وہ ہم نے کیا. پارٹی کی لائن تھی حکم ماننا تھا وہ ہم نے کیا. ہاں پیسے لاتے تھے وہ دے دیتے تھے. ایکسپورٹڈ کوالٹی کی کوکین پیتا ہوں میں. ایک اور بنا. میں کل بھی ہندوستانی تھا, آج بھی ہندوستانی ہوں اور تا قیامت ہندوستانی رہوں گا. اللہ تم کو برباد کر دے, پاکستان کو برباد کر دے. بھارت اگر آج وزیر اعظم مودی, if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. الطاف بھائی نے کیا کہا تھا؟ پاکستان مرد آباد. الطاف حسین نے صرف مرد آباد کہا تھا. ارے بھائی ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی پاکستان بنا کر, ہم مانتے ہیں, معاف کر دو. ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی, ہم ان کی اولادیں ہیں, ہم کو سزا دی جا رہی ہے پاکستان بنانے کی. ہمیں پناہ دو انڈیا والوں, پناہ دو, پناہ دو, دروازے کھولو. انڈیا کا بڑا دل ہے, انڈیا سیکولر ملک ہے. ہم ایسے لوگوں کو بھی انڈیا میں پناہ دیں گے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں انڈیا کے فوج کے, پیراملٹری کے, پولیس کے لوگوں پر جو حملہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ سوگوار ہیں, لوائقین ہیں, ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. ایک رات طوائف جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے. صبح جب اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر گھن آتی ہے. آپ کو آپ کے فلم بھی بنا لیں گے بغیر کپڑوں کے, آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ ایک بستر پہ لیٹا ہوا بھی دکھا دیں گے. مرد اس بات سے واقف ہے ان کی شادی ہو چکی ہے. یہ ایک مخصوص عمل اور ملاپ کے بعد مرد ایک چیز قدرتی طور میں اس کے جسم سے نکلتی ہے اور وہ عورت کے اندر جاتی ہے, یعنی انڈے کا اور اسپرم کا ملاپ ہوتا ہے تو کنسپشن ہوتا ہے, حمل ٹھہرتا ہے. لیکن میرا چیلنج ہے پاکستان میں کوئی لیڈر آپ کو یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں نہیں بتا. اعوذ باللہ شیطان اللعین شیطان اللعین. شرم آتی ہے مہاجروں, شرم آتی ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ, میں نے یہ بعد میں آپ جو بالکل آخر میں اور ساری آپ پوری تمام چیزوں میں یہ آپ نے, میں چاہتے ہوئے بھی میں آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں رکھ سکا کہ ایک مخالف, ایک دشمن کی بات سننے میں بھی شرم آتی ہے. میری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا اور جب ہوتا تھا تو یہیں پر کہانی ختم نہیں ہو جاتی تھی. اے مہاجروں, اس کے پھر اثرات ہوتے تھے, اس کا پھر ریئیکشن ہوتا تھا, اور وہ ریئیکشن کس صورت میں, آؤ دیکھو.
एक एक दिन में 20 से 22 आदमी इस शहर में मर रहा था। यशोदा कब्रिस्तान 84 में एमक्यूएम बनी, यशोदा कब्रिस्तान 84 में नहीं बना। यशोदा कब्रिस्तान 2005 में आकर बना है। एमपीए बनते जा रहे हो, एमएनए बनते जा रहे हो, वजीर सेनेटर बनते जा रहे हो, गवर्नर बैठा है, लेकिन यशोदा कब्रिस्तान में नौजवानों का मरकर जाना नहीं बंद हो रहा था। रात में नशे में दो तकरीर करें, गालियां बकें और सुबह ये होता था। अपने सामने, अपनी नजरों के सामने हमने 10-10 साल के मासूम बच्चों को अपने बापों को दफनाते हुए देखा है। एक एक साथ 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं और बच्चा पूछता है कि मेरे बाबा की लाश कौन सी है, मेरे बाबा कौन से वाले, मुझे फूल डालना है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। यशोदा कब्रिस्तान का गोरखन एक कब्र नहीं खोदता था, एक में लाश डाल रहा होता था तो अगली 2 कब्रें तैयार रखता था कि आ जाएगी बॉडी, और आ जाती थी। मुहाजिरों, कोई पंजाबी पख्तून बलोच मर के नहीं जा रहा था, मुहाजिर मर के जा रहा था। आ जाती थी बॉडी, ना रुकने वाला सिलसिला, और हम ये सब कुछ आराम से बैठकर देख रहे थे। मुस्तफा कमाल का कोई भाई मरकर यशोदा कब्रिस्तान नहीं गया, मुस्तफा कमाल का भाई लापता नहीं हुआ, लेकिन इस शहर की मुहाजिर माओ के बच्चे लापता हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, बच्चे पाबंदे सलासल हो रहे थे, बच्चे यतीम हो रहे थे, बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे। हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मुहाजिरों, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ इस कौम के लिए कि कोई तो इस शैतानियत को रोकने वाला बने, कोई तो हो जो मासूम नौजवानों को मरने से बचाए, इसलिए कि किसी में हिम्मत नहीं थी जो बोलेगा मारा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को मजबूत किया, और मैं और अनीस कायम खानी 3 मार्च 2016 को, जब हमारे साथ कोई मसला नहीं था, दुनिया में हम ऐश और आराम कर रहे थे, हमने अपने बच्चों के सरों पर हाथ रख के आखिरी दफा अलविदा कहा और कहा कि हम मरने जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल अपनी कब्जा हुई भी जमीन छुड़वाने नहीं आया था। हमने अपने बिलखते हुए बच्चों को खुदा हाफिज कहा और कहा नहीं, हम मरने से पहले आवाज लगाकर मरना चाहते हैं। अगर वे जुल्म के खिलाफ बगैर आवाज लगाए मर गए तो हमारा रब कब्र में पूछेगा, हम कोशिश करके मरना चाहते हैं। और हम फिर 3 मार्च 2016 को पूरी दुनिया ने देखा कि आए, और आकर हमने कोई इधर उधर की बात नहीं की, हमने अपने कौम की बात की, नौजवानों की बात की, उनको जिनको कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं था, और कहा कि अल्ताफ हुसैन के अमाल का बदला और उसका खमियाजा और उसका नुकसान मेरी कौम के नौजवानों को मत पहुंचाओ। वो अगर गाली बक रहा है रियासत को और उसके इदारों को, तो मेरे नौजवानों को उसकी सजा मत दो। और हम आए 3 मार्च 2016 को, और हमने क्या बात की 3 मार्च 2016 को, ऐ मुहाजिरों आओ देखो हमने क्या कहा 3 मार्च 2016 को। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है, किसी एक इंसान की फिक्र नहीं है, किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। जब
کسی کارکن کی لاش پہ سیاست کرنی ہو, پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہو, اس کا لاشا جو ہے جنا گراؤنڈ میں رکھ کر اس کے اوپر جو ہے مرثیہ پڑھ لیا جاتا ہے. اس سے پہلے اس کے بعد سینکڑوں لوگ مر جائیں آگے پیچھے. اگر پوائنٹ اسکور نہیں کرنا تو بس جلدی جلدی دفناؤ. یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس پارٹی میں 1990 سے لے کر 92 کے آپریشن سے لے کر آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں. آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں. 2 نسلیں تباہی. 92 میں جو 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفناتا تھا, چلو بھائی آپریشن ہو رہا تھا, ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا. ہم سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور لڑ گئے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے, تمام دنیا سے ٹکرا گئے کہ نہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لوگوں نے جانیں دے دی اپنی. جو بچہ اپنے باپ کو 1992 میں 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا, آج وہ 20-25 سالوں میں 35 سال کا 30-35 سال کا ہو گیا. آج اس کے 5-7 سال کے بچہ اس کو دفنا رہے ہیں. کتنی ایسی مثالیں ہیں جس کے باپ کو بچے نے دفنایا 20 سال 25 سال پہلے, آج اس کے 5-7 سال کے بچے اس کو دفنا رہے ہیں. کس لیے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کون سے حقوق کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا حاصل کر لیا؟ کیا ایجنڈا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ, میں بھی اپنی جان دیتا ہوں. ایجنڈا بتاؤ کیا حاصل کیا ہم نے؟ کیا سولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا, کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا تھا؟ کیا سولت مرزا جس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی, شاہد حامد جو کہ ایم ڈی KEC تھے, کیا سولت مرزا کا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا شاہد حامد سے؟ کیا اپنے قرض لینے گیا تھا وہ, اس کو اس لیے مار کر آیا؟ سولت مرزا کو اس کے قتل کرنے پر کس نے, شاہد حامد کا قاتل کس نے بنایا؟ میں یہی نام لے رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں, جن کو جو ہے وہ ببانگ دول, کوئی نام لینا نہیں چاہتا. جس پارٹی کے وہ پارٹی نہیں اون کرتی. میں اجمل پہاڑی کا نام لیتا ہوں. کیا اجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی پیدا ہوا تھا یار؟ اس کو کس نے دہشت گرد بنایا؟ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, آپ ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی عمریں دیکھیں. کبھی کسی نے سوچا ہے, کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا. آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یہ باتیں. تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, پاکستان کی حکومت سے, ایک ایک پاکستانی سے, ایک ایک اینکر سے, ایک ایک میڈیا چینل کے اونر سے, ایک ایک صحافی سے, ایک ایک انسان سے کہتا ہوں کہ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں. چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے, الطاف حسین صاحب کے اعمال کی وجہ سے آپ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں. خدا را پاکستانیوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لائے عمل بنائے. یہ کوئی بھی راک ایجنٹ نہیں بنے گا, نہ بننا چاہتا تھا, نہ بنے گا. سب کو مس گائیڈ کیا گیا, سب کو غلط کیا گیا, غلط بتایا گیا, سب کو مس گائیڈ. ان سب کو واپس لاؤ. ان ماؤں کے, ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس بھیجو یار. ان بچوں کو, ان خاوندوں کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجو. ان بھائیوں کو اپنے بھائیوں کے, اپنی بہنوں کے پاس بھیجو. ان بچوں کو اپنے ماں باپوں کے پاس بھیجو. جو باپ ہیں, جو والد ہیں کسی کے, ان لوگوں کو اپنے ان کے بچوں کے پاس بھیجو. واپس لاؤ اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ بناؤ. ان لوگوں کی بھی زندگیاں واپس لے کر آئیں, قومی دھارے میں شامل کریں, ان کو رستہ بتائیں. ہم نے یہ ابتدا کی ہے. الطاف صاحب کو جب ہم نے 2016 میں یہ بات کی تو اس بات کے کرنے پہ ہمیں غدار کہا گیا. اس بات کے کرنے پہ ہمیں غدار کہا گیا. اور کون؟ وہ جو غدار ابن غدار جن کے خون میں ہی غداری ہے, وہ ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. ہمیں الطاف حسین کا غدار نہیں کہا گیا, ہمیں کہا گیا کہ ہم مہاجروں کے غدار ہیں. آج تک کہا جا رہا ہے. میں نے 3 گھنٹے مہاجروں کا مقدمہ لڑا. یہ تو ابھی 3 منٹ کی آپ کو صرف میں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ میں اپنی اس قائم خانی, اپنی جان, اپنے بچوں کی جان کو ہتھیلی پہ لے کے, ایک آدمی میرے ساتھ نہیں تھا. اے میرے ساتھیوں, ذمہ داروں, آج تو تم میرے ساتھ ہو. ایک آدمی نہیں تھا میرے ساتھ کوئی. اور یہ وہ وقت ہے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی شہر میں. میں نے آ کر اس قوم کا مقدمہ لڑا. تمہارے نوجوانوں, تمہاری نسل کو ہم رسوائی, ذلت کی علامت بن گئے تھے. ایک آدمی کے ساتھ, اس کے سارے کالے کرتوتوں کے ساتھ پوری قوم کو جوڑ دیا گیا تھا. ہمیں
सब दुश्मन समझते थे। सिंधियों से लड़ाई हो गई, पख्तूनों से लड़ाई हो गई, पंजाबियों से लड़ाई हो गई, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई, बलोचों से लड़ाई हो गई, सारी दुनिया से लड़ गए। और रात में लीडर नशे में दो सारे पाकिस्तान को इदारों को गाली बके और सुबह नौजवान मारे जाए, पकड़े जाए, लापता हो जाए। ये चल रहा था। इलाकों से कोई गुजर नहीं सकता था। 15-15 सालों से नौजवान अपने घरों पर सो नहीं सके थे। 5-5, 6-6, 7-7 सालों से नौजवानों को लापता लोगों का पता नहीं था कि कहां हैं। माएं दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही थी। ये भी नहीं पता था कि जिंदा हैं मर गए। तो हमें इस आवाज उठाने पे हमें गद्दार कहा गया। और गद्दार भी कौन? जो कि गद्दार अपने गद्दार है। 10-10 हजार मुहाजिरों को मारने वाला आज हमें गद्दार कहता है। जिसने 20 सालों में जिनके हाथों से 10,000 मुहाजिर नौजवान कत्ल हुए, वो हमें गद्दार कहते हैं। और हमें कहते हैं, मुझ पर तानाजनी करते हैं कि मैं तो मुहाजिरों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अपने आप को मुहाजिर कहलाते हुए खुदा ना खास्ता मुझे शर्म आती है। और ये है मुहाजिरों के नेता, ये है मुहाजिरों के मसीहा। आओ मैं तुम्हें झलक दिखाता हूं कि मुस्तफा कमाल ने पहले दिन से ये जो तुम देख रहे हो 3 मार्च 2016 की है। क्या मैंने मुहाजिरों की बात नहीं की? क्या मैंने अपने आप को मुहाजिरों से अलग किया? किसके लिए मैंने ये इतना बड़ा कदम उठाया? और क्या उसके बाद मैंने अपने आप को मुहाजिर कहलाने से कहीं पर भी अपनी आवाज दबाई है? ऐ मुहाजिरों, लालू खेत में अपने आप को खड़े होकर मुहाजिर कहना बड़ा आसान है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, नाजमाबाद में, न्यू कराची में, नॉर्थ नाजमाबाद में अपने आप को मुहाजिर कहना बहुत आसान है। औरंगी कोरंगी लांडी में, शाह फैसल मलीर में अपने आप को मुहाजिर कहना बड़ा आसान है। अरे मुस्तफा कमाल लाड़काना में खड़े होकर बोल कर आया कि वो मुहाजिर है। मुस्तफा कमाल सोराब गोट में पख्तूनों के बीच में खड़े होकर बोल कर आया कि वो मुहाजिर है। मुस्तफा कमाल कोयटा के जलसे में बलोचों के सामने खड़े होकर बोल कर आया कि वो मुहाजिर है। आओ देखो जो तुम्हें झूठ बता रहे, बोल रहे हैं। मैं आज फैसला करना चाहता हूं कि ये कौम फैसला करे अपने दुश्मनों में, अपने कातिलों में और अपने मसीहाओं में। आज उनको फैसला करना पड़ेगा। आओ देखो मुस्तफा कमाल क्या कहता है, देखो। मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने पख्तून होने पे, पंजाबी होने पे, बलोच होने पे, सिंधी होने पे। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है और मैं मुहाजिर हूँ। मैं भी मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र। भाई मुझे तो मुहाजिर होने पर फख्र है। मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मैं इस नाम पर सियासत नहीं कर रहा। मैं नहीं हूं मुहाजिर, मैं नहीं हूं मुहाजिर, मैं नहीं हूं मुहाजिर। मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैंने तो सिंधी जबान पढ़ी है। मुझे सूट नहीं करता महाजिर पॉलिटिक्स, मुझे सूट नहीं करता। अगर महाजिरों से और उर्दू स्पीकिंग लड़कों से इतनी मोहब्बत थी तो क्या इस शहर ने ऐसा वक्त नहीं देखा कि जब उसी एमक्यूएम के 2 हिस्से बने, एमक्यूएम मक्की की तो आपने बनाई, एमक्यूएम और एमक्यूएम मक्की की, और इस शहर में ऐसा रोजाना की बुनियाद पर हुआ जब एक महाजिर ने दूसरे महाजिर को मारा और लाश पे जिए महाजिर का नारा लगाया। मतलब उर्दू स्पीकिंग लड़कों की इतनी ये सब क्या हो रहा था? दिसंबर 2009 में आप खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को कि मेरे सैकड़ों कारकुन मार दिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने FIR भी नहीं दर्ज होती, 600 कारकुनों का कत्ल भूल गए, जिसके लिए आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा। हैदराबाद साहब कह रहे हैं हमने नहीं मरवाए, आप कह रहे हैं आपने नहीं मरवाए, अफवाक अहमद साहब कहते हैं मैं तो कभी मरवाए नहीं। सही। तो ये किसने मरवा दिया? इतना सारा उर्दू स्पीकिंग मारा गया सर, किसने मरवाया? किसी न किसी अंदाज में अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। देखिए आज पहली दफा मैं इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर देता हूँ। आज तक मीडिया पे ये बात किसी ने नहीं की और शायद कोई आइंदा कह भी ना पाए, लेकिन मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। 19 जून सन 1992 को जो ऑपरेशन हुआ था, मैं उसका हिस्सा था। जिन कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने उस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोग इन्वॉल्व थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने में। मैं उस चीज का हिस्सा था और मैं उसका गवाह हूँ। सर आप फिर मुझे कुछ तफसील भी बताएं ना। आप हिस्सा थे जी,
मतलब एजेंसियों के साथ आप हिस्सा थे? बिल्कुल थे। तो आप लोगों ने क्या इन्फॉर्मेशन लीक की एजेंसियों को कि यहाँ मुत्तहिदा के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए? नहीं, लीक करना नहीं कहेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन का हिस्सा इस सेंस में हम जरूर थे कि एक चीज होने जा रही थी, हमारी मर्जी उसमें शामिल थी और हम उस जगह को फिल करने के लिए आना चाहते थे कि ये चीज स्टार्ट होगी तो हम उस जगह को फिल कर लेंगे। ये कौन सी थी? अब आप मुझसे नाम किसी का नहीं कहलवाएं। ऑपरेशन तो फौज करी थी। बिल्कुल, फौज की एजेंसी है। तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर जनापुर लेके आया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर होता है आर्मी का। बिल्कुल। आर्मी की एजेंसी होती है ISI। बिल्कुल। तो आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आपको और आफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। आपको और आफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। और मकसद क्या था? मकसद उस वक्त की जो ताकत थी मुत्तहिदा कौमी जो महाजर कौमी मूवमेंट थी, उस ताकत को कमजोर करना, उस ताकत को डैमेज करना और अल्ताफ भाई को और पार्टी को नुकसान पहुंचाना। बट क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे? वजह क्या थी? आपने पूछा तो होगा ना, आंख बंद करके तो आपने एजेंसियों को फॉलो नहीं किया होगा। तो आपने तो जेलें काटी है ना सर। आप एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं। पॉलिटिकल प्लेयर 91, 92 में ISI के हाथों इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल। और उसे पता नहीं था कि वो क्यों हो रहा था। नहीं, देखें, एक एज फैक्टर भी था। हम उस वक्त में नौजवान थे पार्टी के अंदर, मरकजी सतह पर हम बिल्कुल नए नए आए थे, तो हमें इतनी चीजों का अंदाजा नहीं था और हम मिसयूज हुए से तो इनकार ही नहीं। अगर आपको सुबह का भूला मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर नहीं भूल जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। हक परस्त शोहदा के लवाहिकीन, लापता तहरीकी साथियों के अहले खाना मेरी माफी को कबूल करके मुझे तहरीक में एक कारकुन की हैसियत से कबूल किया है। मैं ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि हक परस्त शोहदा के लवाहिकीन, लिहाजा आज न सिर्फ मैं बल्कि यहाँ मौजूद दीगर साथी भी तहरीक के एक एक बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी और नौजवान साथियों से भी माफी की दरख्वास्त करूँ। महाजिर शोधा के फैमिली से आपने माफी मांगी है। वे क्यों माफी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे? आपने उनका सामान चोरी कर दिया था? भाई कत्ल किया था आपने, जब भी तो माफी मांगी थी आपने। वीडियो मौजूद है भाई। आप कहते हैं कि ख्वातीन ने जनाजे उठाए हैं, और भाई चेक तो करो वो जो जनाजे 90s के ऑपरेशन में ख्वातीन ने जनाजे उठाए, वो उसको मारा किसने था भाई? जब आप 92 में आए थे, पहले दिन 19 MKM के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं जोन इंचार्ज था यहाँ पर, और मैं MKM के कारकुनों से कहता हूँ उसकी बातों में ना है। इसने हमेशा आपस में लड़वाने की बात की है और फिर माफी मांग कर कहीं और चले जाते हैं। तो पहचाने कातिल कौन है? आप जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने तो बनाया है। तुमने क्या जेलें काटी है क्या? हैदराबाद जेल काटी है क्या? या साफी बैठे मेरे साथ जेल में थे, हमने जेलें काटी है यार। तुमने किस नाम पर जेलें काटी है? MKM के कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में जेलें काटी है तुमने। हमने अपनी कौम के नाम पर जेलें काटी है। 27 साल घरों से दूर रहे, फरमा रहे हैं 10 बहुत है। 10 अपने भाइयों के नाम बता, 10 अपने घर वालों को लेकर आ। महाजिर कारकुनों को लड़वाओगे आपस में? ठीक नहीं है ये। और मेरे कम बोलने को ज्यादा समझे वो, वरना पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। आप हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? फला ये कर दिया, फला ये कर दिया। ओ भाई, जो किया अपनी कौम के लिए किया, ठीक किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमारे फेवरेट साहब ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है। इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है, और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मौजरो, मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहा है सब कुछ। और इस सारे इकरार, सारे गुनाहों को कबूल करने के बाद भी आज बेगैरती की इंतहा देखो कि आज हमें गद्दार इब्ने गद्दार जो खुद है वो हमें मौजरों का गद्दार कहता है। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी जब से आए हैं, हमने मौजरों को एक पत्थर भी नहीं मारा। ये जब आया था तो इसने पहले दिन 19 जून 1992 को सारे मौजरों के MKM के ऑफिस पे कब्जा, उनके मौजरों के घरों पे कब्जा, और एक दिन में पहले दिन 19 लोगों को इसने शहीद किया, और फिर अगले 20 सालों में 10,000 मौजर नौजवानों को शहीद किया, कत्ल किया। वो आज हमें गद्दार कहता है और इस शहर में आराम से घूम रहा है, आराम से लीडर बना हुआ है, मौजरों का ही लीडर बना हुआ है।
गजब खुदा का। क्यों? इसलिए कि मेरे नौजवान इस शहर के लाइल्म हैं। आज के बाद इस शहर के नौजवानों को ये जवाब नहीं बचेगा, उनको एक तरफ आना पड़ेगा। आज के बाद उनके पास ये जवाब नहीं बचेगा कि उनको पता नहीं है। आज मैं ये किस्सा तमाम करके जाऊंगा यहाँ से। हमें गद्दार कहता है, जब मैं एमपीए था, जब मैं वजीर था, जब मैं मेयर था, जब मैं सेनेटर था और जब मैं गद्दार भी नहीं था, मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, तो एक दिन में 20 माओ के बच्चे मरकर शोदा कब्रिस्तान में जाते थे। आज ना मैं एमपी हूं, ना वजीर हूं, ना सेनेटर हूं, एक काउंसलर मेरे पास नहीं है। आज एक भी मुहाजिर मां का बच्चा मर नहीं रहा। ए गद्दारों, अगर तुम मुझ पर यह इल्जाम लगाते हो तो बुझाइए गद्दारी कबूल है 100 दफा, जिसमें मेरी कौम के नौजवान ना मरे, मेरी माओ के कोख ना उजड़े, मेरी बहनों के सुहाग ना उजड़े। आओ देखो, आज मैं तुमसे ये पहली दफा, ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कारकुनों, ए मुहाजिरों, आज तक मैंने ये चीज ना मैंने अपनी सोशल मीडिया पे शेयर की, ना मैंने कहीं और बताया, लेकिन आज इस दौर के नौजवानों को सच बताने और दिखाने के लिए आज पहली दफा तुमसे कुछ, मेरे पास सैकड़ों में चीजें हैं, मेरे पास दिनों की वीडियोस रात भर चले तो खत्म ना हो, लेकिन उसमें से चंद लम्हात की चीजें तुम्हारे सामने लेकर आया हूं पहली दफा। आओ देखो कि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने आने के बाद कितनी माओ के उजड़े हुए गोदों को उन्होंने आबाद किया है। आओ देखो, आओ। ये तमाम लापता अफराद हैं जो कि बाजियाब हुए हैं। सदका दो थोड़े बहुत और देवो, घर वालों के पास रहो, खिदमत करो, बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई उनके साथ। आप नहीं मेरा नहीं, मैं मेरे पास देखिए, ये तो इसी तबाही बर्बादी से निकालने की, काश मेरा बस चले तो एक भी बच्चा जो है ना वो में और इनके पास नहीं, मेरा इख्तियार नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता कि हर रोजाना सुबह से लेकर रात तक, और हम लोगों को कहाँ किस आपको तकलीफ हुई तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है दूसरों के साथ भी अच्छा करे। आमीन। जो सारे बहाने हैं वो तमाम आ जाए, अल्लाह खुश रहे आप। सब लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत बांट रहा है, सब लोगों की बात नहीं है, जितने लोग हैं
लापता थे, हमें पता नहीं थी। अपनी बहन को लेने ये हैदराबाद गए थे। जो उनसे हो सका बेचारों ने कोशिश करी दिन रात मेरे बच्चे के लिए। अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत दे रब्बुल आलमीन। ऊपर अल्लाह था, नीचे मुस्तफा कमाल भाई थे। मेरे बच्चे की कोशिश करी तो आज मेरा बच्चा मेरे सामने है। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। वो महाजिरों का मुस्तफा कमाल मसीहा है, सबका साथ देने वाला है, ख्याल करने वाला है। तो कहती हूँ उसको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत अता करो। जितना वो काम कर रहे हैं, जब वो सबका साथ दे रहा है तो उन्हें भी सबका साथ देना चाहिए। मेरा बेटा मुस्तफा कमाल जैसा हो तो जाए कोई, जैसा मुस्तफा कमाल है। मुस्तफा कमाल ने महाजिर कौम को बचाया है। बेटा मेरा फरहान सबसे छोटा है और सबका बहुत लाडला बेटा, और मेरी बहुत हालत खराब रही इसकी वजह से। पूरा घर डिस्टर्ब हुआ था। हमने बहुत दरवाजे खोले लोगों के जा जाके, किसी ने बताया नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ भी गए थे MKM के दफ्तर में, जमशेद थाना गार्डन, हम सब जगह होकर आए। जगह जगह इसको ढूंढा, कहीं इसका पता नहीं चला। हमें पता नहीं है दुनिया में या नहीं है, बस दिल में यही धड़कन लगा रहता था। तो इसके बच्चे 2 हैं, इसको उनको देख देख के मुझे बहुत रोना आता था। रात और दिन में सोती नहीं थी। मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, दिल काटी हो गई मैं बहुत। मेरी बेटा हालत खराब रही इसकी वजह से। हमें ईद नहीं लगती थी, माँ खुदा हमें ईद नहीं लगती थी। कहते हैं ना कि जिंदा जनाजा निकला है, वो वाला हाल था हमारा। कोई हमारे ईद नहीं थी। रमजान ऐसे गए, वो रो रो के गए रमजान। पहले तो वो MKM में ही थे, मगर इन्होंने हमारा कोई हाल नहीं पूछा आके। मेरे बच्चे बार बार उससे बड़े जाते रहे वहाँ पर, मगर कोई ये कहते थे ला देंगे, आ जाएगा। हमें मुस्तफा कमाल भाई ने करवाया है। जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है, इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। मुस्तफा कमाल भाई बहुत अच्छे हैं, जो कहते हैं गद्दार हैं वो महाजिरों के लिए बहुत अच्छे हैं। जितना वो लेकर आए लड़कों को, जो कोई पार्टी में है उसको भी लेकर आए, जो नहीं है उसको भी लेकर आए, तो वो कैसे गद्दार हुए? वो खुद गद्दार हैं कहने वाले। वो 2 बेटों से और 2 बेटियों से ही छोटा है सबसे। लापता हुए थे, MKM में थे। इसी की वजह से हमारे बच्चा तकलीफ में आया। हमारा बच्चा तो उम्रे पे जा रहा था। बेटा हम तो बहुत तकलीफ से गुजरे थे। हमारी तो रातें दिन सब खराब थे हमारे। न मुझे रात को चैन पड़ता था, न दिन को चैन पड़ता था। मैं रात भर इस बस तख्त पे बैठी रहती थी और बस मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी, पढ़ती रहती थी। हमें कुछ पता नहीं था, हमारा कोई काम कहीं से नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अज़गैबी मदद से मुस्तफ़ा कमाल को भेजा। हमने जब उनका सुना मुस्तफ़ा कमाल का कि वो आए हैं और उनकी हमने गुफ्तगू सुनी कि हम मतलब अपने लोगों को लेकर आएंगे, तो उसके बाद हमारे अल्लाह ने बस दिल में डाली कि हम मुस्तफ़ा कमाल के पास जाएं। वहाँ जाकर दरख्वास्त की थी। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी हर वक्त उनके लिए दुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने इसको निकलवाया और हमारे हवाले किया था। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाम था पहले भी और अभी भी लोग अच्छी यादों से याद करते हैं मुस्तफा कमाल को। बस हर वक्त हम दुआएं दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। महाजिर भी ये करें कि उनका साथ दें। जब साथ देंगे तो जब ही वो खड़े होंगे ना। इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। ये MKM में थे, राब्ता किया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना ना। फिर हम लोग मुस्तफा भाई के पास गए, फिर वहाँ उन लोगों से राब्ता किया, उन लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने कोशिश करके इनको लेकर आए। तो इंसान में बहुत मुश्किलात आई। हम बहुत वक्त हम लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मुस्तफा भाई महाजिरों के गमख्वार हैं। गद्दार जो बोलते हैं वो खुद गद्दार हैं। मुस्तफा भाई महाजिरों के हमदर्द हैं। वो तो बल्कि जो इतने अरसे से लापता हैं, सब इतनी कोशिश करके वो लोग लेकर आ रहे हैं और वो सुन रहे हैं हमारी। मुस्तफा भाई को जो भी गद्दार कहने वाले हैं वो खुद गद्दार है। बेटे का नाम मेरा मोती सलीम है। 30 महीने मिसिंग रहे, कोई कांटेक्ट नहीं था, न अच्छा न बुरा, क्या मालूम नहीं हो रहा। फिर मैं मुत्तहदा के ऑफिस भी गया क्योंकि मुत्तहदा पाकिस्तान में काम कर रहे थे। वहाँ से कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे फारूक सत्तार भी थे। छोड़ के फिर मैं पाकिस्तान वाला आया। वैसे ये है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है PSP वालों का कि कभी इन्होंने माइंड नहीं किया, ना मुंह बना के बात की। जब भी मैंने फोन किया यहाँ से बच्चों, मैं तो क्या बच्चे करते थे मोहसिन के कि भाई बाबा क्या है, तो हमेशा अच्छे मिलने में बात करते थे। ये आए 30 महीने के बाद। अच्छा बहुत बड़ी जगह है, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुस्तफा भाई का, अनीस भाई का। ये वकील भी इन्होंने अपने पास से दिया है, फ्री ऑफ
कॉस्ट, मुझसे कहने कोई पैसा नहीं देंगे। मैं असल में मैं अपना मॉडल डाउन करता है ना, तो बच्चों का परेशान डिस्टर्ब हुआ है। मैंने कभी नहीं किया कि कोई भी जाहिर नहीं किया मैंने, वैसे फीलिंग्स होती है कि बेटा है वो घर पे ना हो, और बच्चों को मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। मैंने कहा ये समझो कि आपके बाबा बाहर है, ये नहीं समझो कहाँ है, मिसिंग में है। तो दावतों में बात भी होती थी। अच्छा, बच्चे फील करते जब दावत में जाते ना किसी गैदरिंग, अच्छा मैं किसी गैदरिंग खराब नहीं करता, जाता जरूर था लेकिन ज्यादा रुकता नहीं था मैं। तो बच्चों को जब देखते थे ना, तो हो सकता है कि इनको फीलिंग होती थी ये बात कि उनके बच्चों के वालिदैन मेरे नहीं है। तो बहरहाल मैंने इन लोगों को बड़ी हर तरीके से कोशिश किया कि कोई फीलिंग ना हो किसी किस्म की भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुस्तफा कमाल जो है महाजिरों के लिए गद्दार नहीं है, बल्कि सारी कौम के लिए मसीहा है, नजायज धंधा है। झूठ बोलते हैं लोग, खुद गद्दार है लोग। मुस्तफा कमाल तो बिल्कुल फेयर आदमी है, विदाउट इंटरेस्ट। कौम के तो मोहसिन है, कौम के क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के माजी उर्दू सब कौम के मोहसिन है। इनका तो एहसान है कि आप बिल्कुल ला रहे हैं भी बगैर किसी लालच के। हमेशा अब ये बोलते हैं कि आप घर पे रहे। मेरी नजर में तो बहुत बड़ा एहसान है इनका कि मेरा एक बेटे को लिया है ये लोग। माजिर के लिए, ये कौम के लिए तो मेरा यही है कि हम इनके हाथ मजबूत करें। अगर कुछ करना है, करवाना है पक्ष कराची को। तो मैं मेहर मोहम्मद भट्टी, अफजल भट्टी का वालिद हूँ। एक साहब है, उनके साथ में नैन जीरो गया। नैन जीरो जाके वो जो है क्या कहते हैं राब्ता कमेटी जो है, वहाँ जाके मैंने उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करके फिर मैंने वकील साहब से बातचीत करी, जो वकील है उनका बड़ा हाई कोर्ट का, उससे भी बात करी। तकरीबन मैंने सबसे बात करी, लेकिन हर शख्स ने मुझे ना तो कोई दावा किया ना कुछ किया कि वाह हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा आ जाए। फिर उसके बाद में मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, भागा दौड़ा, लेकिन हर जगह से नाउम्मीद हो गया। बेटे यहाँ तक कि मैं ये नाउम्मीद हो गया था कि मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं आएगा, मेरा बच्चा मर के आएगा। उसके बाद में किसी साहब ने मुझे थोड़ा सा मशवरा दिया, मैंने टीवी में भी देखा कि कोई इस किस्म का मदद कर रहे हैं लोगों की, तो उनकी मालूमात के मुताबिक मैं पहुंच गया। वहाँ कमाल भाई थे, अनीस क़याम खानी थे, उन्होंने मुझे बड़े इज्जत से, बड़े अदब से, जैसे कि अपने बाप की इज्जत की जाती है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बड़े अदब से बिठाया और कुर्सी आप भी लेके आ गए, मैं भी बैठा था। फिर मुझसे पूछा कि बाबा बताओ क्या तकलीफ। मैंने उनसे एक ही सवाल करना था कि बाबा मेरा बच्चा लापता है, कोई नहीं मालूम कहाँ है, जिंदा है या मर गया। अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो फिर मैं आपके पास आया हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके पास से भी चले जाऊंगा। तो बेटे उस पर उन्होंने मुझे बड़े अदब से, बड़े एहतराम से तसल्ली भी दी, बिठाया भी, पानी भी पिलाया और बड़े एहतराम से बोला बाबा परेशान नहीं हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है कि आपका बच्चा आ जाए। एक छोटी सी बात है बेटे, ये मेरी अपनी तरफ से कि एक बच्चे की माँ भी है और एक बच्चे का बाप भी है। बच्चे को बाप अपना नाम देता है, माँ जिंदगी देती है। मेरे लिए कमाल भाई माँ है। कमाल भाई मेरे बेटे को जिंदगी देने वाले, वरना मेरा बेटा उम्मीद है कि जिंदा आ जाएगा। तो भाई आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, ये बच्चा भी मेरे साथ था और भी एक दो थे, हम लोग वहाँ पे गए। इसको जब लेके आए बेटे कलेजा फट रहा था, शनाख्त नहीं हो रही थी कि ये मेरा बेटा है। आज ये बच्चा मेरा कमाल भाई की अमानत है। क्यों? वो माँ है, उसने जिंदगी दी है और जिंदगी देने वाला मालिक होता है। बाप तो नाम दे के अलग हो जाता है, बाप ने नाम दे दिया ये मेरा बेटा, मैं मेहर मोहम्मद हूँ, ये अफजल भट्टी है मेरा बेटा है, लेकिन माँ जिंदगी देने वाली है। तो कमाल भाई और अनीस क़याम खानी भाई वो इसको जिंदगी देने वाले। अगर ये समझदार है और अल्लाह ताला ने इसका कुछ, उस मालिक ने इसको हौसला दिया, अदब दिया, तो ये जिंदगी में कभी भी उनको नहीं भूलेगा। मैं तो नहीं भूल सकता बेटा, क्योंकि मेरा 40 साल का 42 साल का बेटा लापता हो गया। हर शख्स कहता था जिंदा नहीं आ सकता, कमाल भाई ने मेरे बेटे को जिंदा मेरे हवाले कर दिया। इससे बड़ा एहसान और क्या होगा बेटे? इससे बड़ा और कोई एहसान नहीं होता। एहसान मंद के लिए, और जो एहसान नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई शर्त नहीं रखी बेटे। उसने कहा कमाल भाई ने, अनीस भाई ने, उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा काम था आपके बेटे को आजाद करवाना, हमने आपके बेटे को आजाद करवा दिया। अब आपके बेटे की मर्जी है, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अब आपके बेटे की मर्जी है। हमारा कोई जोर या कोई शर्त नहीं और ना ही कोई इसको दिया लिख के। बेटे आज के मुल्क के नौजवान बाशऊर हैं, बेशऊर नहीं है। जो कुछ आज कमाल भाई कर रहे हैं, जो कुछ आज अनीस भाई कर रहे हैं, ये सब इनकी आंखों के सामने। मेरी तो पैगाम यही है कि इनको नजरअंदाज, अपनी जिंदगी के खुद मालिक है, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये महाजर कौम जो है ये इंशाल्लाह जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। और अगर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया तो फिर ये महाजर कौम खत्म हो जाएगी। यही पैगाम है इस आजकल की नस्ल से मेरा, कि अगर कोई एहसान करता है तो उसके एहसान बंद रहो, एहसान से ही उसका बदला। ये मुस्तफा कमाल को गद्दार कहते हैं, मौजरों का गद्दार कहते हैं, और ये कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वरना पूरी रात गुजर जाए।
یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب 30 سال کا جو نوجوان ہے اس کو نہیں پتا 19 جون 1992 میں کیا ہوا ہے. وہ یا تو 1 سال کا تھا یا ماں کے پیٹ میں تھا. آج وہ فون پکڑ کر وہ وارئر بنا ہوا ہے, فیس بک وارئر بنا ہوا ہے, سوشل میڈیا وارئر بنا ہوا ہے, اور اس کو عامر خان بتاتا ہے کہ مہاجروں کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا. اتنا ظلم ہوا تھا کہ مرد نہیں تھے جنازے اٹھانے کے لیے تو عورتیں جنازہ اٹھاتی تھیں. اس کو عامر خان بتاتا ہے. اس کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ جو میت ہوتی تھی, جو مرا ہوا انسان ہوتا تھا جس کا جنازہ بہنیں اٹھاتی تھیں, اس کو مارنے والا میں عامر خان تھا. یہ نہیں بتاتا غضب خدا کا, یہ نہیں بتاتا. تو اے مہاجرو, اب یہ ساری جو گفتگو ہے اس کے بعد 2 طرح کے لوگ ملیں گے تمہیں, ہوشیار رہنا. ایک یہ کہیں گے یہ مصطفیٰ کمال تو الطاف بھائی کو گالی بکتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بنتی تو ہے گالی بڑی والی, لیکن بکتا نہیں ہوں میں نے آج تک نہیں بکی گالی. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد گالی بنتی تو ہے, میں نے آج تک گالی بکی نہیں ہے. اس کو جس نے میری 2 نسلیں تباہ کر دی میں نے نہیں بکی, میں نے آج تک گالی نہیں بکی. میں جب یہ سچ بتاتا ہوں, میں جب یہ سچ پر سے پردے اٹھاتا ہوں تو ان منافقین کو برا لگتا ہے, اور اس سچ بتانے کو وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال الطاف حسین کو گالی بک رہا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے, بلکہ تمہیں آج میں کہوں کہ تمہیں اگر ایسا کوئی مل جائے جس کے دل میں آج بھی اس کی کوئی محبت ہو موجود تو میرے پاس آنا. مہاجر خواتین کو سامنے بٹھا کر کیمرے لگا کر یہ جو قائد تحریک ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, میں یہ ویڈیو نکال کر دوں گا اور یہ اس بغیرت کو دینا لے کر کہ جا کر اپنے گھر میں سنائے جا کر. اگر اس میں آج بھی ذرا سی کوئی حص رہ گئی ہے, میں ایسے لوگوں کو مہاجر نہیں مانتا. مہاجر اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا کہ اپنے سامنے اپنی ماں بہنوں کو بٹھا کر ایک نشہ کیا ہوا آدمی, جب میں مصطفیٰ کمال بولتا تھا کہ نشے میں دودھ تقریر کرتا تھا تو مجھے تم غدار کہتے تھے. دیکھو رب کا نظام, اللہ نے وہ ویڈیو, ہم تو 200 ارب روپے دے کے بھی الطاف حسین سے یہ ویڈیو نہیں بنوا سکتے تھے کہ اس سے نشے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جا رہا. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہہ پا رہا. نشے میں دھت ہے, کیمرے کے سامنے یہ حالت ہے تو کیمرے کے پیچھے کیا کرتا ہوگا. اے مہاجروں, میں اس کو مہاجر نہیں مانتا, اس لیے کہ مہاجر اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا کہ جس کو آج یہ سب کچھ سننے دیکھنے کے بعد بھی اس کو آج ذرا سی کوئی اس کے سامنے کوئی اس کی عزت رہ گئی ہو. اگر کوئی تمہارے سامنے آئے اور کہے کہ مصطفیٰ کمال الطاف بھائی کو گالی بکتے ہیں, اگر وہ نہیں بکتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے, اس کو بولو کہ رہو تم, یہ ساتھ اپنی سیڈی لے جاؤ, اپنے گھر میں بڑی اونچی آواز میں سنانا, اس میں سے بیپ بھی ہٹا دوں گا میں, اور پوجا کرو اس کی, نہیں چاہیے اس کا ووٹ اس مہاجر کا. اور یہ شاعر رہنما جس کو بھاری دیکھتا ہے اس کا چھوٹا بچہ بن جاتا ہے. کل کو یہی شاعر یعنی اس قائم خانی کے لیے شاعری کرتا تھا, آج عامر خان اس کا باپ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ مہاجر کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں, خود شرماتا ہے مہاجر. ہر دور میں یہ کسی کا بچہ ہی بن کے رہا ہے, چرب زبان, میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا. کبھی انیس قائم خانی, جب انیس قائم خانی پاور میں تو انیس قائم خانی کا بچہ, کبھی محمود صدیقی پاور میں تو اس کا بچہ, آج عامر خان لیڈر بنا ہوا تو اس کا بچہ بنا ہوا ہے. اس کی قسمت میں ہی جو ہے وہ نیچے رہنا ہے, بچہ بن کے رہنا ہے. یہ مہاجر قوم کے نیتا ہیں تو یہ آ کر بولیں گے کہ ایشوز پر بات نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے چہروں پہ سے نقاب نوچو. تو اس 2 طرح کے لوگوں سے ہوشیار رہنا. اے مہاجرو, ایشوز ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے اور جانتا ہے, ہم سے زیادہ کون اس کراچی کے مسائل کو سمجھتا ہے, تم ہمیں بتاؤ گے. غدارو, اس قوم کو رسوا کرنے والوں, تم ہمیں بتاؤ گے. یہ شہر اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے بنوایا تھا. آج 10 سال ہو گئے, تمہارے اندر ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو مصطفیٰ کمال کے کیے ہوئے کاموں کو سنبھال سکتا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ شہر کو دوبارہ بنائیں گے. تم کیا بتاؤ گے ایشوز ہمیں؟ ہماری انگلیوں پر ہے اس شہر کے مسائل, ہماری انگلیوں پر ہے. جس رات اس قوم کو ہوش آ گیا, اگلے دن سے یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اے کارکنوں, اے ساتھیوں, اے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ساتھیوں, آج کے بعد سے 15 سے 30 سال کا جو
नौजवान है उसके पास से ये जवाज खत्म हो गया कि उसको पता नहीं था, सब चीजें पता चल गई। सियाक व सबाक के साथ इन माओ के आंसू रायगा नहीं जाएंगे, इन माओ की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, हमारे साथ हमारा रब है। अरे तुम्हें क्या पता बहनों की तकालीफ, बच्चों का लिपटना, देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने बापों से कैसे लिपट रहे हैं, माएं कैसी तड़प रही हैं, बहनें कैसी तड़प रही हैं। अल्लाह ताला ने ये काम कराया हमसे, अल्लाह ताला ने ऐ साथियों तुमसे ये काम कराया है। हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है इस कौम का। तो अब अगर यहां तक मेरे साथ हो तो फिर देखो भाई, हमें बातिल कुव्वतों की इजारादारी खत्म करनी है। आज बातिल हम पर मुसल्लत है, एमक्यूएम की शक्ल में, पीपल्स पार्टी की शक्ल में, पीटीआई की शक्ल में बातिल है, और हम हक पर रहने के बावजूद आज हमारा गलबा नहीं है। ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथियों, रब का निजाम है कि रब ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है, लेकिन अगर कहीं पर बातिल उरूज पा रहा हो, हावी हो, तो समझ लो कि हक पर चलने वालों ने अपना काम पूरा नहीं किया। समझ लो कि हक पर चलने वालों की काविशों में कोई कमी रह गई है। मुझे इस बात के करने में कोई आर नहीं है कि हाँ हमें अभी और कोशिश करना बाकी है, अभी पूरी कोशिश नहीं हुई है। मैं तुम्हें एक मिसाल देकर सब समझाता हूं और अपनी बात खत्म करूं। देखो, किसी ने चंद दिन पहले बड़ी एक बात की, और वो ये कि सारी अमल का दारो मदार नियत पर है। आप 2 रकात फर्ज नमाज और 2 रकात नफिल नमाज में कोई फर्क नहीं है। फर्ज भी उसी तरह पढ़ते हैं 2 रकात, और नफिल भी उसी तरह पढ़ते हैं 2 रकात, लेकिन उसका दर्जा अलग है। फर्ज का दर्जा अलग है, नफिल का दर्जा अलग है। सिर्फ फर्क है तो नियत का फर्क है। उसी तरीके से आप नफिल की नियत करोगे, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, नफिल का सवाब मिलेगा। वही तरीके कार उतनी मेहनत पे फर्ज की नियत कर लो, अल्लाह ताला दर्जे बढ़ाकर सवाब देगा। तो ऐ मुहाजिरो, मैं अगर सारे पाकिस्तान के भाइयों की नियत कर लूं कि अल्लाह ताला हमें ताकत दे के इन सबको सुख दे सकूं, तो मैं तो नियत करके ये अजर हासिल करना चाहता हूं। तुम भी ये अजर हासिल करो, करने वाली जात मेरे रब की है। तो अगर रब नहीं चाहे तो अपने घर में तिनका नहीं तोड़ सकता। मैं मुहाजिरों का भी कुछ नहीं कर सकता, पख्तूनों का भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। वो चाहे तो हमारे हाथों से मुहाजिरों का भी भला करा दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से पख्तूनों को भी गम दूर करा दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से वो जो कुत्ते काट रहे हैं बच्चों को सिंध के अंदर, उन बच्चों को भी जो है वो अमन दिला दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से हमारे बिहारी के बलोचों को भी अमन दिला दे, उनको सुख दिलवा दे। वो चाहे तो पंजाब के पंजाबियों को, गिलगित बल्तिस्तान के गिलगितियों को, वो चाहे तो बलूचिस्तान के मजलूमों को, वो चाहे तो पंजाब के सेहरा के तमाम हारियों को, मजदूरों को, किसानों को, मजलूमों को चाहे तो हमारे हाथों से उनको सुख पहुंचवा दे, उनके सारे बिगड़े काम बना दे। तो हमें तो नियत करनी है, कोशिश करनी है, करने वाला जात मेरा रब है। ऐ मेरे साथियों, तो नफिल की नियत ना करो, उसी मेहनत में फर्ज की नियत करो, अल्लाह ज्यादा अजर देगा। ये जो हम काम कर रहे हैं ये फर्ज है, करने वाली जात मेरा रब है। तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, ऐ मुहाजिरों, ऐ सारे पाकिस्तानियों, मेरी इलेक्शन की हार पर मत जाओ। आज इन माओं के आंसू मेरा डिविडेंड है, मेरा इनाम है, मेरी कामयाबी इन रोती हुई माओं के आंखों से आंसू पोंछे हैं हमने। इससे बड़ी कोई और हमारे लिए कामयाबी नहीं है, नहीं है। शहर में नौजवान मर नहीं रहा, कोई इससे बड़ी कामयाबी नहीं है।